Okay, very good morning to all of you. We have discussed in the last sessions what is pattern and what is the allowances. Some allowances I have discussed, but right now some students have newly entered. That is why I am just repeating, as well as we will discuss all types of allowances which will covered in the syllabus. Okay. Now what is pattern? Last time I have asked the questions. It is a common questions right now. What is pattern? Pattern is the replica of any object that is to be casted. Is it clear? What is pattern? Hello? Yes, sir. It is a replica of Am I the audible? object pattern. Sir, Yes, sir. it is replica Okay, of the very copy good. of a object, sir. Okay, very good. ठीक है, ये जस्ट एक कॉपी है. कॉपी किसका? ऑब्जेक्ट का. दैट इज टू बी कास्ट. जो हमको कास्टिंग में हमको चाहिए, दैट इज उसका जस्ट एक कॉपी होता है. ठीक है. तो पैटर्न में क्या करते हैं? पैटर्न जो होता है, ये कास्टिंग साइज जो होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उससे समवॉट हम उसका डायमेंशंस ज्यादा लेते हैं. क्यों? क्योंकि देयर विल बी सम श्रिंकेज एज वेल एज मशीनिंग फिनिशिंग इज रिक्वायर्ड. दैट इज व्हाई वी will provide extra dimensions to that that material, that is pattern. Okay. Okay, so now we will discuss one by one what is the pattern, what is different types of allowances. Basically this is the formula. What is pattern size? Pattern size may be casting size plus minus allowances. ठीक है. allowances मतलब प्लस किस में होगा? जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा. ठीक है. आफ्टर सॉलिडिफिकेशन the mold gets contract. ठीक है. contraction होगा. there will be a shrinkage in the molding. ठीक है. यदि expansion होगा, some exception case, like I have told in the last classes, for which material you will give the negative allowances. Hello? Yes, sir. For which material you will give the negative allowances? ग्रे कास्ट आयरन मैंने बताया था ना सर, ग्रे कास्ट कास्ट आयरन, सर. ओके ग्रे हाई कास्ट कार्बन आयरन. कंटेनिंग. कास्ट आयरन मत बोलना, ग्रे कास्ट आयरन याद रखो. ग्रे कास्ट आयरन. ठीक है. ठीक है. तो ये सर, बेसिकली हाई क्या है कार्बन आपका? कंटेनिंग मटेरियल, सर. हेलो, देखो दिस इज रेड कलर. ये क्या है? मेरे पास कास्टिंग है. ठीक है. अब कास्टिंग में हम क्या देते हैं? एक्स्ट्रा अलाउंसेस देते हैं. आइदर इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बस बेसिकली आई एम टेकिंग हियर द पॉजिटिव अलाउंसेस. ठीक है. पॉजिटिव अलाउंसेस हमने एग्जांपल लिया है था. ठीक है. दिस इज द आवर एग्जैक्ट साइज ऑफ द पैटर्न. ओके. एग्जैक्ट आफ्टर exact size of pattern. Okay. After shrinkage and as well as machining, you will get the exact size of the product. Is it clear? ठीक है. तो बेसिकली फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट टाइप ऑफ अलाउंसेस इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन अलाउंसेस. लास्ट टाइम I have also discussed somewhat in this regarding this topic, but now I am repeating. देखो बेसिकली होता क्या है? श्रिंकेज अलाउंसेस is given to take care of the contraction of the casting. Is it clear? Shrinkage allowances is provided to take care of the contraction of the casting or shrinkage of the casting. ठीक है. shrinkage of casting के लिए हमने क्या बताया था? ये 3 स्टेप में इसका क्या होता है? यहाँ पे 3 स्टेप में मेटल का क्या होता है? metal gets shrinkage in the 3 steps. First step देखो, look at this figure. ठीक है. This is the figure of temperature versus time. ठीक है. Is it visible ना? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Point A is temperature point. ठीक है. Point B is the freezing temperature and point C is the freezing temperature also. ठीक है. But this point B is at liquid state condition, but point C is the solid state condition. Okay. D is the point of room temperature. Okay. D is the room temperature point. ठीक है. तो अब बेसिकली हमने क्या कहा था कि pouring temperature will be always greater than 200 to 300 or 150 to 300 degrees centigrade more than that of melting temperature of that material. ठीक है. किसी मटेरियल का मेल्टिंग टेम्परेचर से
उसका टेम्परेचर जो बोरिंग टेम्परेचर होता है 200 से 300 डिग्री हम ज्यादा रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आई थी लास्ट टाइम मैंने बताया था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि 3 स्टेप में इसका श्रिंकेज कैसे होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो पोरिंग टेम्परेचर, ठीक है, पोरिंग टेम्परेचर में क्या होगा, ये आपका लिक्विड श्रिंकेज होगा। पोरिंग टेम्परेचर से ये कहाँ पे आएगा, ए से बी में आएगा, तो क्या है, देयर विल बी लिक्विड कूलिंग, देयर विल बी लिक्विड कूलिंग ड्यूरिंग द लिक्विड कूलिंग प्रोसेस, during the liquid cooling process there will be a heat rejection। ठीक है, there will be heat rejection। ठीक है, that is known as our sensible heat। is it clear? sensible heat कहने का मतलब जहाँ पे temperature variations होता है। ठीक है, but in the case of latent heat temperature does not take place, the variation of the temperature does not take place। is it clear? clear to all of you? ठीक है, तो how we will, Yes, sir. okay, how we will calculate the sensible heat during the process A to B। प्रोसेस A to B से कैसे आप कैलकुलेट करोगे हीट रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस A to B? when the liquid gets pouring temperature to freezing temperature in the liquid state, then how we will calculate the heat release during this process? anyone Sir, pouring temperature minus freezing temperature, liquid cooling temperature. okay, Q A B will be equal to what you have told, M Sir, freezing temperature. okay, very good, MCP into TA minus TV। am I right? am I right? क्या बोल Yes. रहे थे प्रखर? Yes. हेलो, कौन बोला था? प्रखर कौन बोल रहे थे अभी? संजय सर, संजय। संजय, ओके, वेरी गुड संजय। जैसा आपने कहा था जस्ट एक थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला लगा दोगे तो QAB, ठीक है, हीट रिलीज ड्यूरिंग द सेंसिबल हीट रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस A to B, that is liquid cooling, will be equal to how much, M into Cp of liquid। Cp will be for the liquid metal, okay, PT minus PB, या तो TA minus TB, या TB, TA is what, TA is their pouring temperature and TB is their freezing temperature। is it clear? Yes, is sir. it clear? Yes, sir. okay okay okay, now the liquid gets shrinkage during the process B to C, that is there will be a phase change during the phase change process, also there will be a shrinkage inside the casting। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस B to C पे क्या होगा, फ्रीजिंग begins। ठीक है, freezing begins, it will be at constant temperature, that is why there will be a latent heat release during this process। ठीक है, so how we will calculate the latent heat during this process B to C? How will you calculate? Q Sir, subtracting freezing temperature by freezing completed. ओके, देखो QBC कैसे निकालोगे, आपके पास इंथैल्पी होना चाहिए। लेटेंट हीट के लिए क्या होता है, इंथैल्पी होता है, या लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन किसी मटेरियल के लिए होता है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, याद है? ठीक है, तो दैट विल बी आवर इंथैल्पी, दैट विल नोन एज हियर इंथैल्पी। ठीक है, तो m इनटू जस्ट m इनटू आपका लेटेंट हीट भी गुना कर दोगे तो दैट विल गिव्स यू द लेटेंट हीट रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस फॉर दिस मटेरियल। किसी मटेरियल का लेटेंट हीट आपको दिया रहेगा चार्ट। ठीक है, नाउ फ्रॉम C to D, ठीक है, दिस इज the solid shrinkage। ठीक है, the solid cooling और solid shrinkage, this will begin at the freezing temperature to room temperature। ठीक है, here also temperature changes take place, temperature change take place here also, it is known as sensible heating, sensible cooling process। ठीक है, यहाँ पे sensible heat release करेगा, the process will release sensible heat। okay, then how will you calculate the sensible heat, quantity of
sensible heat during the process. This will be equal to Q C D will be equal to how much? How much? Okay, tell me. M, obviously CP. M there will be a mass into C P. CP Okay, constant. EC minus TD. This is for देखो this will be for liquid state और this will be for solid state. ठीक है, दोनों का अलग आता है. That will be T C minus T. I am using mouse to write. That is why the handwriting is not so good. Is it clear? No problem, sir. Okay. ठीक है. Is it clear up to here? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Anyone have diagram? Okay. किसी को diagram? भाई बाकी स्टूडेंट का कैसे पता चला? और 22 स्टूडेंट ही प्रेजेंट है, बाकी का स्टूडेंट हमको कैसे पता रहेगा बाकी का स्टूडेंट? कांटेक्ट कर. कांटेक्ट करो. Okay. Right now I am audible. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बेसिकली मैंने क्या कहा था कि 3 स्टेप में मेरा क्या होता है, 3 स्टेप में यहाँ पे श्रिंकेज टेक्स प्लेस. ओके, तो यहाँ पे देखो श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए हम दो तरीका यूज करते हैं. एक क्या करते हैं, हम राइजर कोड लगाते हैं, एक राइजर लगाते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, एक अलाउंसेस देते हैं. ठीक है, तो ड्यूरिंग विच प्रोसेस वी विल यूज द राइजर, आई हैव टोल्ड इन लॉट्स ऑफ टाइम. During which process you will use the riser? Last time I have told, na? Sir. Hello. Yes, sir. Okay. Okay. Look at this. Okay. During the process A to C. Okay. That is liquid cooling as well as solid phase changes. Okay. Total process shrinkage due these two processes will be covered by or compensated by use riser. Okay, these two processes will be compensated by using riser. Okay, riser is used to acts as a reservoir. Okay, metal reservoir. ठीक है, रिजर्वायर होता है, और ये क्या करता है, यदि there will be a shrinkage in the casting, they will feed the liquid metal and compensate that gap. Is it clear? वो क्या करता है, श्रिंकेज अलाउंस, श्रिंकेज होता है थोड़ा सा यदि मेटल में, वो तो क्या करता है, वो पोर कर देता है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो उसके पास रहता है वो क्या करता है, फिल कर देता है, ताकि वो जो है उसका शेप मेंटेन रहे. ठीक है, तो ये आपका दो प्रोसेस, फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर लिक्विड टू फ्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड स्टेट. ये दो प्रोसेस विल बी कंपनसेटेड बाय, दिस टू प्रोसेस विल बी कंपनसेटेड बाय using hello by using Yes, sir. By using riser. ओके, वेरी गुड. बताओ मेरे साथ. ओके, ठीक है, तो अब क्या बोल आप क्या करेंगे, there will also be another shrinkage of solid. ठीक है, solid casting, that is from C to D. ठीक है, from freezing temperature at solid state to room temperature. ठीक है, that shrinkage will be compensated by giving the shrinkage allowances on the pattern. ठीक है, तो
ये जो आपका अलाउंसेस है, ये अलाउंसेस को ही बोलते हैं आपका श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस दैट विल बी प्रोवाइडेड ऑन द हेलो Question. ऑन द पैटर्न, ठीक है, पैटर्न Sorry, पे sir. तो क्या Pattern. पैटर्न, ओके ओके ओके। नाउ देयर इज अ टू टाइम, ठीक है, यहाँ पे दो टाइम होता है मेरे पास सॉलिडिफिकेशन टाइम। हम दो, यदि क्वेश्चन में आएगा आपको कैलकुलेट करने के लिए, यू विल हैव टू कैलकुलेट टू टाइप्स ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि दोनों टाइम क्या है। एक होता है लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम एंड अनदर इज टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम, ठीक है। तो टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कूल फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। देखो फिगर में, देखो फिगर में क्या है, फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। इट इज अ टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कूल फ्रॉम पॉइंट ए टू सी इज कॉल्ड टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम। मतलब पोरिंग टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर एट सॉलिड स्टेट, दैट विल बी आवर टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम। इज इट क्लियर? यहाँ तक टोटल मटेरियल जो मेरे पास है, लिक्विड मेटल solidified completely. Is it clear? But what is local solidification time? Local solidification time is from B to C, ठीक है। That is called local solidification time. मतलब freezing point at liquid state to freezing point at solid state. अब clear है? Clear? Hello. Yes, Sir, sir. once more, sir. Okay. ओके ठीक है। तो लिक्विड श्रिंकेज इज ऑलवेज स्पेसिफाइड बाय द परसेंटेज ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करते हैं। लिक्विड हाउ मच परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम हैज बीन श्रिंक ड्यूरिंग द लिक्विड प्रोसेस, लिक्विड सॉलिडिफिकेशन या लिक्विड श्रिंकेज, ठीक है। तो हाईएस्ट लिक्विड श्रिंकेज इज ऑब्जर्व्ड फॉर एल्यूमिनियम, दैट इज आवर 6.60%, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन द वॉल्यूम, ठीक है, मैंने पहला बताया था। तो सबसे ज्यादा श्रिंकेज अलाउंस किसमें देना पड़ेगा हमको? श्रिंकेज अलाउंसेस यदि हम यदि मान लो कि एल्युमिनियम का हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मेरे पास जो लिक्विड मटेरियल जो होगा, सॉरी, जो एल्युमिनियम है, क्या है सबसे ज्यादा ये क्या करता है? श्रिंक करता है। तो यदि हम कोई पैटर्न बना रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट ऑफ द एल्युमिनियम, देन वी हैव टू गो फॉर द लार्जर श्रिंकेज अलाउंसेस, ठीक है। यहाँ पे लार्जर श्रिंकेज अलाउंसेस देना पड़ेगा यदि एल्युमिनियम का हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया अभी कि लिक्विड श्रिंकेज इज कंपनसेटेड बाय प्रोवाइडिंग राइजर, ठीक है, ड्यूरिंग द मोल्ड मेकिंग, एंड मेटल इन द राइजर शुड बी सॉलिडिफाइड एट द एंड, ओके। ये तो जानते हो, ठीक है। तो राइजर वॉल्यूम जो होता है, बेसिकली हम राइजर को डिजाइन कैसे करते हैं? तो राइजर वॉल्यूम, ठीक है, इट विल बी राइजर वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी riser volume will be 3 times or more than that the total shrinkage volume, ठीक है। टोटल श्रिंकेज वॉल्यूम जितना होगा उससे 3 टाइम्स या उससे ज्यादा हम लेते हैं, ठीक है, टू कंपनसेट द श्रिंकेज इन द कास्टिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या है? दिस इज राइजर एयर एंड दिस इज एयर मोल्ड कैविटी इन विच लिक्विड मेटल हैज बीन फिल्ड, ओके। आफ्टर गेट इज सॉलिडिफाइड, after getting solidified it gets contract, yeah, there will be shrinkage inside this, okay. That shrinkage will be compensated by the compensated by the liquid metal existing in the riser, okay. Now see in the next figure, after solidification, the level of liquid metal inside the riser go down. Is it clear? Hello. Yes, sir. Okay. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Column? Okay. Sir, kindly repeat it. There is some glitch of your in your sound, so I can't hear you properly. Okay. Basically, why we will design the riser? We will design the riser to compensate the liquid shrinkage. Is it clear? To compensate the liquid shrinkage, हमेशा याद रखना, ठीक है। From A to C मैंने बताया था, from A to C, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि लिक्विड मेटल है, लिक्विड मेटल यहाँ पे राइजर है, दिस ऑल आर फुल ऑफ लिक्विड मेटल, ओके ओके। मोल्ड कैविटी एज वेल एज राइजर इज फुल ऑफ मोल्ड molten metal, okay.
now when a solidification process gets started, ठीक है, it gets क्या, the mold cavity gets shrinkage, okay, okay, gets shrinkage, and this shrinkage will be compensated by the liquid existing inside the riser, okay. तो अब देखो फिगर 1 एंड फिगर 2 कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे लिक्विड फुल ऑफ राइजर इज फुल ऑफ लिक्विड मेटल, ओके. When solidification takes place, the riser, there will be a shrinkage inside the mold cavity, okay, mold cavity or mold, okay. After solidification, that liquid metal will compensate the shrinkage of the casting, okay. And now there is a empty space inside the riser, that volume has been compensated, okay. अब समझ में आई बात? Is it clear? Yes, Is it sir. clear? Yes, sir. Okay, जो पूछ रहे थे उसको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, sir. विकास दास एडमिट, ठीक है. अभी टाइम खत्म हो जाएगा कुछ देर में, तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लेना इसी. Okay. Now solid shrinkage is so to compensate the solid shrinkage we use this type of contraction allowances, ठीक है. आपका shrinkage allowances यूज करते हैं, ठीक है. तो solid shrinkage allowances is provided on the pattern to compensate the solid shrinkage, as I have told in the last slide. Solid shrinkage is directly proportional to coefficient of thermal expansion of the metal. ये क्या होता है कि कोई भी मेटल क्या करता है, यदि हीट होता है तो क्या करता है, वो एक्सपेंड करना शुरू कर देता है. इज इट क्लियर? एंड दैट एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर. इज इट क्लियर? ठीक है. उसके बाद यदि क्या करता है, यदि मेटल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन होना, यदि सॉलिडिफिकेशन होना शुरू करता है, तो क्या करता है, लिक्विड सॉलिड गेट्स श्रिंकेज, ठीक है. एंड हियर यू हैव टू प्रोवाइड द अलाउंसेस इन लिनियर डायरेक्शन, ठीक है. और ये क्या करता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है मेटल, ठीक है. तो ये आपका अलाउंसेस को डेजिग्नेट करते हैं 1 mm पर मीटर, ठीक है. यदि मान लो कि आपका 5 मीटर का कास्टिंग बनाया, तो उसमें एक पैरामीटर मेरे पास चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, या क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा 2 mm पर मीटर हमको क्या करना है, श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करना है, ठीक है. श्रिंकेज अलाउंस प्रोवाइड करना है. इज इट क्लियर? इन लिनियर डायमेंशन हमेशा देखना, याद करना कि श्रिंकेज हमेशा लिनियर डायमेंशन में देते हैं, ठीक है. यहाँ पे 5 मीटर का हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसमें हमको 2 mm पर मीटर के हिसाब से क्या करना है, श्रिंकेज अलाउंस डालना है. तो टोटल अलाउंसेस बिल भी कितना, फाइनल कितना हो गया उसका डायमेंशन, final dimensions of the pattern will be how much? Hello? Yes, sir. Sir, एक बार क्वेश्चन फिर से. मैंने बताया कि you have to make 5 meter of object, ठीक है, 5 मीटर लेंथ का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ओके. एंड आपका श्रिंकेज अलाउंस दिया हुआ है 2 mm पर मीटर. इज इट क्लियर? सॉरी, 2 mm पर मीटर, दिस इज mm here, ठीक है. ओके. तो राइट नाउ you have to make a pattern for casting this product. Is it clear? ठीक है. So what will be the dimension of the pattern? What will be the dimension of the pattern? 5.02. 5.02. देखो 2 mm क्या करते हैं, 2 mm, हाँ 2 mm क्या करते हैं, पर मीटर लेते हैं, ठीक है. 2 mm पर मीटर, तो 5 दूना 10, ठीक है. तो कितना हो गया, 10 mm हो गया ना. 2 मीटर एंड 10 mm. बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या कहा कि 2 आपका 1 mm, दैट इज 2 mm पर मीटर मेरे पास दिया हुआ है श्रिंकेज अलाउंसेस किसी भी मेटल का, ठीक है. श्रिंकेज अलाउंस दिया 2 mm पर मीटर. यदि 5 मीटर का हम यदि ऑब्जेक्ट चाहते हैं, तो हमको पैटर्न का साइज क्या होगा, पैटर्न का डिजाइन कैसे करेंगे, पैटर्न शुड बी ऑफ 5 मीटर एंड 10 mm, ठीक है. 5 मीटर एज वेल एज 10 mm, देयर विल बी ए अलाउंसेस, ठीक है. Clear? We'll discuss in questions, then you can understand easily.
ठीक है। तो ये देखो आपका जो इंटरनल डायमेंशन जो होता है मेटल क्या होता है, ये इसका टेंडेंसी क्या होता है, सेंटर की तरफ सिकुड़ता है, ठीक है। मेटल क्या होता है, सेंटर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो दिस इज द टेंडेंसी, ठीक है। ये देखते हैं आपका अलाउंसेस इन द ठीक है, फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। तो लुक एट दिस ऑल मटेरियल्स, फॉर व्हिच मटेरियल हैव द हाईएस्ट अलाउंसेस, कैन यू सी, can you see the picture here? Yes, sir. Okay, now for which material you have to give the more allowances, shrinkage allowances, Lead, by sir. looking The lead. Lead, sir. Sir, lead. lead. Lead is 0.260. Okay, very good, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फिगर में आपका जितना अलाउंसेस होगा, इसका मतलब कि उसका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, ये आपका सॉलिडिफिकेशन वॉल्यूम है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता है, कुछ में एक्सपेंशन होता है। मैंने बताया था ना, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन मैक्सिमम मटेरियल गेट्स श्रिंकेज, maximum Contracted. material gets shrink, but some of the material that exception you can say है, that will get expand after solidification, ठीक है। तो ये आपका कुछ आपका एग्जांपल है, याद रखिएगा आप, ग्रे कास्ट आयरन है, ठीक है, जिसका 2.5% आपका एक्सपेंड करता है, सिलिकॉन है और बिस्मथ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन में आएगा, यदि ठीक है क्वेश्चन में आएगा बीच मटेरियल रिक्वायर्स लार्जेस्ट साइज ऑफ राइजर या बीच मटेरियल रिक्वायर्स लार्जेस्ट साइज ऑफ श्रिंकेज अलाउंस, ठीक है। तो ये मटेरियल को कंपैरिजन करके आप बता सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो मेरे पास यदि मान लो कि पूछता है कि बीच मटेरियल रिक्वायर्ड लार्जेस्ट साइज ऑफ राइजर, उसका क्या होगा, लार्जेस्ट साइज ऑफ राइजर का मतलब क्या होगा, राइजर विल कंपनसेट द श्रिंकेज, लिक्विड श्रिंकेज ऑफ द कास्टिंग, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ज्यादा यदि डिजाइन करना है, इसका मतलब सबसे ज्यादा वो मटेरियल को चूज करना है जो सबसे ज्यादा वो श्रिंक करता है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन घुमा सकता है, क्वेश्चन को घुमा सकता है, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक एग्जांपल, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका लिखा है, तो कास्टिंग शोन इन द फिगर इज टू बी मेड इन प्लेन कार्बन स्टील यूजिंग अ वुडन पैटर्न, ठीक है। कास्टिंग का मटेरियल क्या होगा, प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है। लेकिन आप जो बना रहे हो, पैटर्न बना रहे हो, दैट विल बी ऑफ वुड, ठीक है। एज्यूमिंग श्रिंकेज अलाउंसेस ओनली, ठीक है। बहुत सारा अलाउंस होता है, लेकिन यू हैव टू एज्यूम श्रिंकेज अलाउंस, ठीक है। कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ द पैटर्न, ठीक है। तो दिस डायमेंशन ऑफ द कास्टिंग, ठीक है। ये आपका इंटरनल डायमेंशन दिया हुआ है 80 mm, ये आपका लेंथ दिया हुआ है, ये आपका ब्रेथ दिया हुआ है, दिस इज द हाइट दिया हुआ है आपका, okay? So you have to design a pattern so that you can achieve this product, is it clear? And the casting pattern material will be a wooden pattern, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू टेबल डाटा, आप निकाल सकते हो वहां से, ठीक है, या क्वेश्चन में दिया रहेगा। श्रिंकेज अलाउंसेस फॉर स्टील इज 20 mm पर मीटर, 1 मीटर यदि हम लेंगे, 1 मीटर का डायमेंशन लेंगे, तो उसमें 20 mm क्या देना पड़ेगा मेरे को, श्रिंकेज अलाउंस देना पड़ेगा, ओके। तो ये हमने क्या कहा था कि श्रिंकेज अलाउंसेस लिनियर डायरेक्शन में लेते हैं। आर यू लिसनिंग और नॉट, हेलो, Yes, sir. Yes, ओके। sir. अलाउंस किस में देते हैं, श्रिंकेज अलाउंस देते हैं लिनियर डायमेंशन में देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या देंगे, आपका लेंथ में देंगे, तो लेंथ में कितना है आपका 200 mm है, इज इट क्लियर, 200 mm है। तो यहाँ पे मीटर में मैंने बनाया था, ठीक है। तो मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, इसको 200 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, उसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि 1 मीटर में 21 देते हैं तो 0.2 मीटर में कितना देंगे, तो ये आपका आ गया 4.2 mm। इज इट क्लियर, इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ इट हैज बीन कैलकुलेटेड, क्लियर Yes, sir. हुआ कि नहीं Yes, हुआ, ओके। Yes, नहीं हुआ sir. तो फिर से पूछो, बार बार पूछो यदि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। यदि आप सीख रहे हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये आपका मेरे पास कितना निकल गया, 4.2 mm, ठीक है। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा,
204 देखो यहाँ